اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں پابندی کے ساتھ مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، بڑی پیاری اور بڑی اچھی خوش کر دینے والی پہلی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، اسرائیل اور امریکہ کے آتنکوادیوں کا داؤ الٹا پڑ گیا۔ جی ہاں، حماس نے گھات لگا کر زبردست انداز میں حملہ ایسا کیا کہ اسرائیلی فوج فرار ہو گئی۔ خان یونس میں زبردست جھڑپ ہوئی، ٹینک تباہ کر دیے گئے، بختر بند گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا، اور غزہ پر زمینی حملے کی پیش قدمی کی صورت میں شدید ریئیکشن کی وارننگ بھی دے دی گئی۔ وہیں پر حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر حملہ کر دیا اور اسرائیل کی ایک چوکی کو تباہ کر دیا۔ مزاحمتی تنظیموں نے، مجاہدین نے تل ابیب پر بھی زبردست انداز میں راکٹ داغے اور خوف و دہشت سے 1 لاکھ یہودیوں کی نقل مکانی، یعنی وہاں سے نکلنے کی، بھاگنے کی، فرار ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ وہیں پر امریکہ نے حماس کو فوجی کارروائی کی دھمکی دی۔ تو اب تک کیا کر رہا ہے؟ اب تک امریکہ یہی تو کر رہا ہے، لیکن حماس اور مجاہدین پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ غزہ پٹی پر اسرائیلی جارحیت اور درندگی بھی ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ کل اسرائیلی آتنکواد نے ایک مسجد کو بھی شہید کر دیا جس کا نام مسجد انصار بتایا جا رہا ہے، اور اسرائیلی آتنکواد کا ننگا ناچ ایسا بھی کھیلا گیا کہ گزشتہ کل صرف اتوار کو یعنی ایک دن میں 163 مظلوم فلسطینیوں نے شہادت پائی اور جنت کے حقدار بن گئے۔ حماس سربراہ خالد مشعل نے قبلہ اول مسجد اقصی کی بازیابی کے لیے پوری امت مسلمہ سے کھڑے ہونے کی اپیل کی ہے۔ دن دوسری بڑی خبر بھی اسرائیل فلسطین حماس کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، عیسائیوں کے روحانی پیشوا پاپ فرانسس کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کی جو صورتحال ہے، میں اس پر بہت زیادہ غمگین، افسردہ اور پریشان ہوں۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پاپ فرانسس کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے ہفتہ وار اور دعائیہ خطاب کے دوران کہا کہ اسرائیل فلسطین کشیدگی میں یرغمالیوں، زخمیوں، متاثرین اور ان کے اہل خانہ کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی جاری رکھی جائے، مدد کی جائے، یرغمالیوں کو جنہیں کڈنیپ کیا گیا ہے انہیں رہا کیا جائے۔ پاپ فرانسس نے یہ بھی کہا کہ دنیا میں کہیں بھی ہو، جنگ ہمیشہ شکست ہوتی ہے اور انسانیت کی تباہی ہوتی ہے۔ پاپ فرانسس نے اپیل کی کہ بھائیو، جنگ کو روکو۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ جس طریقے سے اسرائیل کو بھی کڑے انداز میں
मुजाहिदीन जवाब दे रहे हैं। अब लाखों इजरायली अपना गांव अपना मकान छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए और जो इजरायलियों को यरगमाल बनाया गया है, तो अब जनाब हुकूमत के यानी इजरायली हुकूमत बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोग, खुद उनके लोग, इजरायली लोग सड़कों पर उतर आए हैं और ये कह रहे हैं कि यरगमालियों को वापस लाओ, हमारे जितने लोगों को किडनैप किया गया उनको वापस लाओ, जिंदगी हमारी जहन्नम बन गई है। खैर, इजरायलियों को इतना समझना चाहिए था कि तुमने 60-70 साल से मजलूम फलस्तीनियों की जिंदगी को जहन्नम बनाए रखा था। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। आइए, बड़ी अफसोसनाक खबर इस वक्त आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि गज़ा और इजराइल, फलस्तीनी और इजरायली आतंकवादियों की जो जंग है वो 16वें दिन में गुज़िश्ता कल दाखिल हो गई। दूसरी तरफ बड़ी अफसोसनाक खबर ये आ रही है कि यूएनओ की सलामती कौंसिल में अमेरिका ने एक मुसव्वदा करारदाद पेश किया है जिसमें इजराइल को अपने दिफा के हक की हिमायत की गई है। यानी अमेरिका मरदूद ने यह कहा कि इजराइल को अपना डिफेंस का दिफा का हक हासिल है। ये कहे जालिम कातिल के 60-70 साल से इजराइल फलस्तीनियों पर हमले कर रहा था, फलस्तीनियों ने पहली मर्तबा हिम्मत की, तो अब इजराइल को दिफा का हक हो गया, तो क्या फलस्तीनियों को अपनी जमीन, अपने मुल्क के दिफा का हक नहीं है? और यही नहीं, ईरान से भी मुतालबा किया गया है कि वो अपनी वफादार मलेशियाओं और गिरोहों को हथियारों की बरामद बंद करे जो पूरे खित्ते में अमन और सलामती को खतरे में डाल रही है। यानी अमेरिका ने गुज़िश्ता कल ईरान को भी वार्निंग दी और इजराइल की हिमायत और इजराइल के सपोर्ट में एक करारदाद सलामती कौंसिल में पेश की। वहीं पर मोहम्मद बिन सलमान यानी सऊदी के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने रियाज में अमरीकी सेनेटर से अहम मुलाकात की और गज़ा, फलस्तीन और इजराइल के तनाज़े पर तबादला ख्याल किया। और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने गज़ा में कशीदगी को ख़त्म करने की ज़रूरत पर रोशनी डाली ताकि तशद्दुद मज़ीद न फैले और ख़ित्ते और दुनिया की सलामती और अमन पर कोई असरात न हो। मोहम्मद बिन सलमान ने इस बात पर जोर दिया कि फ़लस्तीनी अवाम को उनके जायज़ हुकूक मिलने चाहिए। बल्कि मलेशिया के वज़ीर आज़म ने तो ये भी कहा कि फ़लस्तीन के मामले पर अगर सऊदी अरब क़यादत करता है तो ज़बरदस्त असरात मुरतब होंगे। यानी सऊदी अरब को और इस्लामी मुल्कों को आगे आना चाहिए क्योंकि बरसों से फ़लस्तीनी मजलूम हैं। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। दिन चौथी बड़ी खबर ये आ रही है कि इजरायली आतंकवादियों ने वार्निंग देते हुए फलस्तीनियों को, गज़ा के रहने वालों को जिनकी अपनी खुद की जमीन है फलस्तीन की और अपनी जमीन है गज़ा की, उन मालिकों को इन आतंकवादियों और घुसपैठियों ने यानी इजराइल ने यह वार्निंग दी कि फलस्तीनियों को चाहिए कि वो गज़ा को छोड़ दे और शिमाली गज़ा से जुनूब की तरफ चले जाएं वरना दहशतगर्दों का साथी समझा जाएगा। तो वहीं पर गज़ा और फलस्तीनियों ने कहा कि ये हमारी अपनी ज़मीन है। आतंकवादियों को, काबिज़ों को, घुसपैठी आतंकवादी इजराइलियों को, यहूदी और सहयूनियों को चाहिए कि वो ईमानदारी से यहाँ से निकल जाए। और मुजाहिदीन ने, गज़ा के और फलस्तीन के लोगों ने साफ तौर से ये कहा है कि किसी भी हाल में हम अपनी ज़मीन को छोड़ने वाले नहीं है और मस्जिद अक्सा की बाजियाबी और मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत हमारी अपनी, खून के आखिर कतरे तक हम करते रहेंगे। इजराइल की जानिब से गज़ा की पट्टी पर रात गए इजरायली हमलों में तकरीबन 55 अफराद शहीद हुए और इजरायली फौज ने फलस्तीनियों को गज़ा से निकलने की वार्निंग जारी करते हुए खबरदार किया कि अगर वो वहां पर रुके रहें तो उन्हें दहशतगर्द तंजीम का हमदर्द समझा जा सकता है। यानी इजरायली आतंकवादी बाकायदा वो कहते हैं ना कि चोरी तो चोरी उल्टी सीना धोरी, यानी इजरायली आतंकवादी फलस्तीन की जमीन पर कब्जा करके फलस्तीन के मालिकों को कह रहे हैं कि अपनी जमीन को यहां से खाली कर दो। जबकि हकीकत यह है कि 60-70 साल से इजराइल आतंकवादी बना हुआ है और फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। एक सहाफ़ी है, बड़े मशहूर सहाफ़ी, फलस्तीनी सहाफ़ी, बरतानवी टीवी मेज़बान को
उन्होंने खुलकर ये कहा, उस जर्नलिस्ट ने ये कहा कि इजराइल और हमास की जो जंग हो रही है, ये जंग नहीं है, ये वार नहीं है, ये मुनज़्ज़म और प्री प्लान अंदाज में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी है, यानी फलस्तीनियों को ये ख़त्म करना चाहते हैं। और उन्होंने साफ तौर से बताया कि इजरायली हमलों से सिर्फ उसके अपने 30 अजीज और बेहतरीन दोस्त सहाफ़ी मारे जा चुके हैं। जो लोग हमास के 7 अक्टूबर हमले की बात करते हैं, वो मकबूजा बैतुल मुक़द्दस पर इजराइल के आए रोज चढ़ाई पर खामोश आखिर क्यों हैं? फलस्तीनी सहाफ़ी ने यह भी कहा कि इजरायली जेलों में फलस्तीनी लड़कियों से ज्यादती पर वो क्यों दरिंदे, वो क्यों नहीं बोलते? यानी आज जो इजराइल की हमदर्दी जता रहे, उन तमाम आतंकवादियों को यह सोचना चाहिए कि 60-70 साल से इजराइल कितना आतंकवाद का नंगा नाच फलस्तीनियों के साथ खेल रहा है और किस तरीके से फलस्तीनी बेटियों और लड़कियों के साथ जेल में दरिंदगी और बर्बरता करता रहता है। सहाफ़ी ने यह भी बताया कि उसके 30 दोस्त अब तक बाकायदा इस गज्जा और हमास की जंग में मारे जा चुके हैं। आइए आखिरी बड़ी खबर आ रही है हिजबुल्लाह और इजराइल को लेकर। आप जानते हैं कि हमास के साथ में अब बाकायदा इजरायली आतंकवादियों पर हिजबुल्लाह भी हमले कर रहा है। तो अब खबरें आ रही है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ सरहद पर झड़प की और उस झड़प में अपने 6 जंगजू, यानी हिजबुल्लाह ने कहा कि हमारे 6 जंगजू मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, इस बात का हिजबुल्लाह ने एतराफ किया है। वहीं पर इजरायली वजीर हिजबुल्लाह पर बरस पड़े और ये कहने लगे कि अगर हिजबुल्लाह ने हमला किया तो फिर ईरानी मुल्लाओं का हम नामो निशान मिटा देंगे। यानी गोया कि ईरान और हिजबुल्लाह दोनों को इजरायली वजीर ने धमकी दी है। हालांकि सच ये है कि जो कुछ भी हो रहा है दुनिया देख रही है, दुनिया समझ रही है, इजराइल आतंकवादी था, है और आगे भी रहेगा। इसलिए पूरी दुनिया अगर अमन व अमान चाहती है तो इजराइल और यहूदियों के, सहयूनियों के आतंकवाद को समझना होगा और उसे मिलकर खत्म करना जरूरी है।